Good morning to all of you. परमेश्वर की नाम की महिमा हो और परमेश्वर की स्तुति हो और सभी लोगों को सुप्रभात। Thank you once again for the warm welcome that you always give me. और सभी लोगों को मैं धन्यवादी हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से हमें स्वागत करते हैं। We are continuing to study. Our present series is the Expedition of Israel. और हम लोग जो है हमारा अध्ययन को जारी रखेंगे जो इस्राएल की जो यात्रा है वह मरु यात्रा। They are a group of people. They're traveling with a purpose, with a motive, and they're traveling to a particular destination. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक ग्रुप के लोग हैं, एक झुंड है, एक उद्देश्य लेकर के अपनी यात्रा को उन्होंने शुरू किया है। The only difference between the other people and these are the chosen people of God. और जो दूसरे लोग हैं और ये लोगों के बीच में अंतर यही है कि ये लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। And they are chosen with a definite purpose. और इन लोगों को कुछ उद्देश्य रख करके परमेश्वर ने चुना है। And they have been chosen for a specific destination. और उन लोगों को एक जो है में यात्रा को संपन्न करने के लिए उनको चुना गया है। And that is why I coined the word expedition, which means it's an English word, which is very prevalent and used particularly in the schools and colleges. They go on a tour, they go on an educational tour, so that is called expedition. People go to new places, adventuring that's called an expedition. So I thought it was right to use this word for this journey of the children of Israel, and so I call it the expedition of Israel. और इसीलिए मैंने इस शब्द को मैंने लिया है एक्सपीडिशन। उसका मतलब जो है एक लक्ष्य रख करके यात्रा करने के विषय जो है मैंने इस शब्द को चुना है। जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, वो लोग जो है टूर्स में जाते हैं और अपना यात्रा करके वापस लौट करके आते हैं, वैसे ही है ये लोग भी जो है कुछ उद्देश्य के साथ जा रहे हैं, इसीलिए मैंने इस शब्द को चुना है। And as I always said at the beginning, and I continue to say this has a lot of relevance to us as believers who are on a journey. और ये हमारे जीवन में भी बहुत महत्वता है क्योंकि हम भी जो विश्वासी हैं, हम भी एक यात्रा कर रहे हैं। We are the New Testament Israelites. और हम लोग जो है नया नियम का इजरायली हैं। We have been chosen by God. और हम लोग परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं। We have been chosen for a specific purpose. और हम लोगों को परमेश्वर ने एक मुख्य उद्देश्य के साथ चुना है। And we have been chosen for a specific destination. और हम लोगों को भी जो है एक ऐसी यात्रा देने के लिए, एक अंतिम यात्रा देने के लिए परमेश्वर ने चुना है। Like how the children of Israel were pilgrims. They were not tarrying in any place. They just stopped for a short while and kept moving till they reached the final destination. So is our journey. सो मेरे प्यारो, जैसे कि इजराइल के लोग एक जगह जो है यात्रा करते समय रुक नहीं गए या देर नहीं लगाए, क्योंकि जो है वे लोग यात्रा ही करते रहे, क्योंकि उन लोगों का एक उद्देश्य थी और उस अंतिम उद्देश्य व अंतिम चरण में उनको पहुंचना था। We must all remember that we are pilgrims here. We are not sojourners. We are pilgrims and we are passing through this world. और इस संसार में हम एक परदेशी हैं और हम जो है एक जगह रुकने वाले लोग नहीं, हम यात्रा कर रहे हैं। You must also remember that we belong to God and not to the world. और एक बात ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, वो ये है कि हम इस संसार के नहीं बल्कि परमेश्वर के हैं। For example, if you look at any foreigners who come and stay in India or expatriates who come and stay in India, they stay here for a short while, but they go back to their country. Or for example, if you talk about a Britisher who comes here for a business, he's here for a short while, but then he belongs to Britain. He has to go back there. So similarly, we are here only for a short while, and after that, we belong to the Lord. We belong to that place that He has chosen us for. We don't belong to this earth.
और मेरे प्यारों, जैसे कि आप जानते हैं कोई विदेशी आता है तो कुछ ही समय के लिए यहाँ पर रुक करके जाता है। जैसे कि विदेशी ब्रिटिश लोग हैं, वो कोई बिज़नेस के पर्पस में यहाँ पर आए और अपना व्यापार करने के बाद, कुछ दिन रहने के बाद वे लोग वापस चले जाते हैं। वैसे ही हम लोग भी यहाँ पर कुछ दिन के लिए रुकने के लिए आए हैं, अपना काम को समापन करके यहाँ से हम लोग चले जाएँगे। We are accountable to the Lord. We are accountable to God. We are responsible to God. While we tarry in this world, we are also accountable to the worldly things here. But what takes precedence is that God whom we worship, who has called us to a specific place, we are accountable to Him. And that's something that we must always bear in mind. मेरे प्यारों, हमारा मन में हर समय एक ही बात का ख्याल और याद रखने की बहुत आवश्यकता है कि हम इस संसार के नहीं, बल्कि परमेश्वर के हैं और आप और मैं उसके लिए एक-एक पाई-पाई का हिसाब देना जो है हिसाब देना पड़ेगा। वो इस परमेश्वर को हिसाब देना है और उसके साथ-साथ इस संसार की जो सांसारिक वस्तुएँ हैं, उनके प्रति मन ना लगा करके परमेश्वर की ओर मन लगाना है क्योंकि उसको हिसाब देने की आवश्यकता है। The children of Israel were very ordinary people. They were human beings like you and me. मेरे प्यारों, इज़राइल के लोगों के विषय में देखें, तो वे लोग साधारण आम आदमी लोग थे, जैसे कि आप और मैं हैं। They were no special people than the rest of the people who were prevalent in the world at that time. और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो है बाहर दुनिया के लोग जैसे थे, वैसे ही वे लोग थे, कोई ऊँचे ऐसे दर्जा पाने वाले लोग नहीं थे। You remember in Genesis 12, when the Lord called out Abraham from the Ur of Chaldees, he called him specifically for a specific purpose and then grew the entire Jewish nation. और आप लोगों को याद होगा इब्रानी उत्पत्ति उसका 12वाँ अध्याय में जहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर बुलाते हैं कलदकियों की देश में से ऊर के देश में से परमेश्वर उसको बुलाते हैं और एक जो है एक उद्देश्य के साथ उनको बुलाते हैं और धीरे-धीरे वो अब्राहम की जो वंश है एक देश में एक जाति में परिवर्तित हो जाता है वो है यहूदी। There were so many other people prevalent at that time, but God specifically chose Abraham and blessed his lineage and then took him out from this world with a specific purpose. So has he done to you and me. मेरे प्यारों, उस समय बहुत सारे लोग दुनिया में थे, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को ही चुना और फिर बाद में हम देखते हैं कि उनके जो वंशावली आती है, सभी लोगों को परमेश्वर आशीष करते हैं। वैसे ही है मेरे प्यारों, संसार में बहुत लोग हैं, फिर भी आपको और मेरे को परमेश्वर ने चुना है। So the children of Israel were ordinary people, but they were chosen by the Lord. They were equipped by the Lord. They had a definite purpose, and the Lord was taking them finally to the place that He Himself had chosen, a land flowing with milk and honey. Scripture says that He chose that land. The Lord chose the land for His people. सो मेरे प्यारों, जो इज़राइल के लोग थे, आम आदमी के लोग थे, आम साधारण व्यक्ति थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक उद्देश्य के साथ चुना, उनको भी चुना और उसके साथ-साथ परमेश्वर ने एक ऐसी जगह को चुन करके उनको वहाँ रखने की प्रण लिया। The Lord God has done something even more special to us than what He has done for the children of Israel. मेरे प्यारों, जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर इज़राइल के लिए जितना किया है, उससे बढ़ कर के एक बहुत बड़ा उद्देश्य आपके और मेरे सामने रखा है। What is that something special that He did? और जो अनोखा आपके और मेरे जीवन के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? That's something special is that He sent His only begotten Son into this world to die for you and me so that He could purchase us through His Son and then He could take us to the place that He wants us to be. मेरे प्यारों, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा। वो प्रभु यीशु मसीह है। वो आपके और मेरे लिए उस क्रूस पर मर गया, अपना प्राण को दिया, पवित्र लहू को बहाया ताकि पापों से आपको और मुझे मोल लिए और परमेश्वर जो जगह आपके और मेरे लिए तैयार किया है, प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए वहाँ पर लेकर के जाए। That is why we read yesterday in 1 Peter 2:9, we are a special people, we are a holy nation, we are a peculiar treasure.
We're a chosen generation. See how Peter was writing as inspired by the Holy Spirit. How precious we are to this Lord that you and I worship. और मेरे प्यारो, जैसे कि पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 9वां पद में हम लोग जो है कल इस पद को हम लोगों ने पढ़ा था कि आप और मैं कैसे एक चुने हुए वंश है। और हम लोग देखते हैं चुना हुआ वंश ही नहीं बल्कि राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग है। ऐसा अद्भुत जाति के रूप में परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। That is why we are more special than the children of Israel. और इसीलिए आप और मैं जो है इज़राइल से भी बढ़ करके अनोखा है और स्पेशल है। And in John 14, we read that I go to prepare a place for you and I will come to take you to be with me. So the Lord has gone before us to prepare a place for us. मेरे प्यारो, जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ मेरे प्यारो, वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह आपके और मेरे लिए जगह तैयार कर रहा है। We are all waiting for the Lord to come back and take us to be with himself in the place that he is preparing for us. और मेरे प्यारो, जो प्रभु यीशु मसीह की आगमन की हम इंतजार कर रहे हैं और वो यीशु मसीह आकर के जो हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं, उस जगह में वो ले जाने वाले हैं। And I'm a reminder that every time we should be prepared, we should say, Maranatha, come, Lord Jesus, come. That should be something on the top of our mind, always ready, always prepared for the Lord to come. और मेरे प्यारो, एक बात जो है हमारे मन में, हमारे मुंह में आने की बहुत आवश्यकता है, वो है मारानाथा। हे प्रभु आजा, ओ प्रभु आजा। यही सोच, यही विचार, यही शब्द जो है हर समय हमारे मन में होने की आवश्यकता है। And so when we study the life of the children of Israel in the expedition of Israel, it has valuable jewels and gems and truths for us so that we can apply it, we can prepare ourselves, we can mold ourselves as we submit ourselves totally to the Lord for his glory and for his will. मेरे प्यारो, जैसे कि आप और मैं इज़राइल की जो यात्रा है उसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसे बहुमूल्य कीमती पत्थर के समान है, वहां पर मणि है, वहां पर रत्न है। वो सब कुछ जो है आपके और मेरे लिए एक सीख के समान है। और उस यात्रा के जरिए जो है हम उन सिद्धांतों को, उन शिक्षाओं को सीख सकते हैं। The world has many challenges for us. This life has many challenges. It's not an easy life. But we have examples in the Bible for us to learn from and then to incorporate that in our lives and to follow the footsteps of the Lord Jesus Christ. How easy God has made it for us, keeping examples or ensamples in the scripture. मेरे प्यारो, इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करना कितना कठिन बात है, साधारण नहीं है, आसान नहीं है। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया है न, अपना पवित्र वचन में जो बहुत सारे ऐसे उदाहरण को वो तैयार करके रखा है, ताकि अपना जीवन को उन्हीं उदाहरणों के जरिए अपना जीवन को इस संसार में एक विश्वासी के रूप में हम अच्छे तरीके से अपना जीवन को इस संसार में व्यतीत कर सकते हैं। As I told you in the introductory session, as we study the journey of the children of Israel, the expedition of Israel, we will also study what lessons we can learn for ourselves. जैसे कि पृष्ठभूमि जब मैं बता रहा था, इंट्रोडक्शन में दे रहा था, उस वक्त आप लोगों को मैंने कहा था कि इस यात्रा के जरिए कौन सी ऐसी सीख है व सिद्धांत है हम सीख सकते हैं। Yesterday we considered the first station, which is called Ramesses. और पिछले दिन जो है कल हम लोगों ने रामसेस जो पहली स्थान थी जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, उस जगह को हम लोगों ने देखा था। There's one thing I forgot to ask you yesterday. I had requested you last week to go through Numbers 33 from verses 5 to 49 and note down in your Bible all the 42 locations. And I trust you have done that, all the 42 stations you have identified in those scripture portions. और मेरे प्यारो, मैंने आप लोगों को कहा था कि गिनती का पुस्तक में जा करके आप लोगों जो गिनती का पुस्तक उसका 33वां अध्याय में जा करके
जो 42 जगहें हैं, उन जगहों का नामांकन करने के लिए मैं आप लोगों को कहा था। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग उस अध्याय में जा कर के उन जगहों का नाम आप लोगों ने शायद नोट डाउन किया होगा। You have that from verses 5 to 49. और आप लोग उन जगहों को देखेंगे तो 5वां पद से लेकर के जो है 49वां पद तक आप लोग देख सकते हैं। All right, if you have not done it, you can still do it. It'll be a worthwhile exercise for you to go through all those verses from Numbers 33, 5 to 49. Go through every verse and you will find all the locations, stations that we are going to study. और मेरे प्यारो, अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो अभी भी वक्त है। आप लोग उस अध्याय को आप जाइए और जो 42 जगहें हैं उनको आप जो है अपना पुस्तक में अपना बाइबल में एक कलर पेंसिल या फिर मार्कर के साथ आप उसको नोट डाउन करिए और इन जगहों को आज हम अध्ययन करने वाले हैं। When you note down, very specifically, Sibir said, use a pencil or a highlighter. When you note down, what happens is our mind automatically registers that. So it's very और important to write it or to mark it in your Bible. Your mind will automatically register that. That is how the mind is made. और मेरे प्यारो, आप लोग जब अपना जो बाइबल में यदि उसको कलर कर देंगे या फिर उसको नोट डाउन करेंगे तो आपका मन में जो है वो बैठ जाएगा और हमारा मन में कभी भी जब जरूरत पड़ता है तो उसको आप याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। आप शायद देख सकते हैं ऐसा। Oh yeah, that's right. यस। And as I said yesterday, we started off with Ramesses. I spent one whole hour talking about Ramesses. I'm not going to spend time like that with every station, but there are some stations where we will have to spend that much time to understand it. So that is how we're going to study this. We will continue to learn from all the 42 stations what lessons we have. मेरे प्यारो, जैसे कि कल हम लोगों ने 1 घंटा तक अपना समय को जो रामसेस के बारे में रामसेस जो जगह है उसके विषय में पढ़ने के लिए हमारा समय को हमने जो है वहां पर बिताया। लेकिन हर जगह को हम लोग ऐसे ही समय नहीं बिता सकते। फिर भी हम प्रयास करेंगे, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, कुछ समय हमें गुजारने की आवश्यकता है। Before God, I can tell you that I'm trying my best to give you the best of information available because this month is a very busy month for me. This is the financial year end this month. So the business also that I have to manage is tremendous. The whole of yesterday and the last 1 week I've been very busy from morning to evening in meetings, in conference calls and all that. But still the Lord is giving me time with whatever time I have. I am collecting and preparing it for all of us to study, and I trust the Lord is blessing it to all of us. यस। सो मेरे प्यारो, जैसे कि अंकल बता रहे थे कि वो वे है जो है बहुत बिजी हैं, बहुत ये साल का जो है आखिरी समय है, तो इसीलिए बहुत ही व्यस्त समय वो गुजार रहे हैं। बहुत सारे मीटिंग्स है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस है। फिर भी परमेश्वर जैसा समय देते हैं उसके अनुसार वे नोट्स को जो है तैयार करते हैं और जो उत्तम से उत्तम हो सकता है वो चीज को हमारे सामने ला करके रखते हैं। I'll confess before God, I'm not doing a perfect job. I'm not doing justice to the job which God has called me, but I'm doing my best. And when I do my best, I'm sure the Lord will bless it to me and to all of you. सो मेरे प्यारो, मैं आप लोगों को बताऊं कि सिद्ध से सिद्ध काम को जो है मैं नहीं कर पाता, लेकिन मेरे जो हिसाब से जितना हो सके उतना जो है मैं मेरा प्रयास रहता है उस काम को करने के लिए। All right. So yesterday we spent a lot of time understanding the first station, which is called Ramses, and that has got a special significance in your life and my life. सो पिछले दिन हम लोगों ने कुछ समय को हम लोगों ने बिताया था। वो समय ये था कि रामसेस के विषय में उस जगह जो है आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत महत्व रखता है। All right. Now, I do not know if you remember this, I said it, but I'm going to say this once again. What we studied about Ramesses, it refers to our physical birth in this world. We are born from our mother's womb, out of the fetus, we have come out. That represents Ramesses in our life. और मेरे प्यारो, कल मैंने कहा था, आप लोगों को याद होगा कि नहीं, लेकिन मैंने ये कहा था कि रामसेस
किसके बारे में वो छायाचित्र दर्शाता है व किसके विषय में वो दर्शाता है। मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग जो अपना माँ के गर्भ से हम लोग जो है निकाल करके आते हैं, उस चीज को जो है रामाशीष दर्शाता है, इस बात को मैंने कहा था। As much as the children of Israel were chosen for a specific purpose, when I and you were born from our mother's womb in this world, we have been chosen with a specific purpose. मेरे प्यारो, जैसे कि आप और मैं अपने माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, आपको और मुझे परमेश्वर ने एक जो है कुछ कारण लेकर के, एक अनोखा कारण को लेकर के परमेश्वर ने चुना है। We have been freed from our mother's womb. Everything that has been constraining us inside the mother's womb, we have been freed from that and we have born into this world. सो मेरे प्यारो, आप और मैं जो है बहुत कुछ जो बाधाएं थी, बहुत सारे प्रतिबाधाएं थी, सब कुछ को तोड़ करके आप और मैं जो है स्वतंत्र होकर के निकले हैं। और हाँ, यस। Yeah, and when we are born, we are armed and equipped with all the strength and the tools that we require to overcome all life challenges. और मेरे प्यारों, जब हम हमारा माँ के गर्भ से निकल करके आए हैं, उस वक्त जो है बहुत सारे ऐसे उपकरणों के जरिए आप और मैं सजे हुए हैं, ताकि इस संसार के जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, उन सब परेशानियों और परिस्थितियों का सामना करके हम जयवंत हो सके। Now, not only that, we need to be trained. और उतना ही नहीं, बल्कि हमें प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। We need to be educated. और हमें जो है शिक्षित होने की आवश्यकता है। Why is this necessary? Why is training and education necessary for us? और हमें प्रशिक्षण लेना और जो है शिक्षा पाने की आवश्यकता क्यों जरूरत है? Why? Because we can realize our true potential, because everyone is born with an individual potential. और मेरे प्यारो, इसीलिए जरूरी है क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो है उसके कौशल से वो परिपूर्ण है। इसीलिए उसको प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है, ताकि उस कौशलता से वो अपनी कौशलता को पहचान सके। All of us handle different responsibilities. हर एक व्यक्ति को अलग अलग जो है जिम्मेदारियां हैं। All of us are equipped differently. और हर एक व्यक्ति अलग कौशलता से वो परिपूर्ण है। All of us have different skills. और हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रवीणताएं हैं। All that has happened because of our training, because of our education, and what we are today is because of that. That is how the Lord has chosen us. That's how the Lord is equipping us, so that our inner potential is exploited and we are able to be used by the Lord. और मेरे प्यारो, हर एक व्यक्ति अलग अलग जो है कौशलता से परिपूर्ण है, क्योंकि उसकी उसी तरीके से वो प्रशिक्षण पाता है, और वो परमेश्वर आपको और मुझे उसको इस्तेमाल करने के लिए वो चुनता है। Brothers and sisters, birth is a joyous occasion, is it not, in our families? मेरे प्यारो, हमारा परिवार में हम जानते हैं, कोई बच्चा या बच्ची पैदा होते हैं, उस वक्त जो है बहुत आनंद का माहौल होता है। A child is born with great anticipation and brings joy as to how that child is going to shape up and what journey it's going to take. There is great aspiration or great expectation from the parents when a child is born. मेरे प्यारो, जब एक बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा जो है सभी लोगों का मन में खुशी तो लाता है, उसके साथ साथ एक नई उमंग, नई आशा जो है, नई आशा की किरण लेकर के आता है, ताकि आने वाला भविष्य में वो बच्चा कुछ कर दिखाए। ये किरण, ये आशाएं हर एक माता पिता के जीवन में रहता है। And this is exactly the meaning of Ramesses. और मेरे प्यारो, यही रामाशीष का अर्थ प्रकाश करता है। I hope you remember what is the meaning of Ramesses. और शायद आप लोगों को याद होगा कि रामाशीष का अर्थ क्या है। What is the meaning of Ramesses, if you और remember that? और यदि आपको याद है, तो फिर रामसेस का अर्थ क्या है? I told you yesterday, it's It's the best land. The best of the land. That's right, Yes, Sibir. best It's of the the best of the land. And so when a child is born in this world, every parent has the best of things shaped up, and the expectation is that the child will be the best, will enjoy the best things in this world.
और मेरे प्यारो, रामसेस का अर्थ है जो है उत्तम से उत्तम जगह को वो दर्शाता है, उत्तम जगहों में से एक अच्छी जगह ऐसा दर्शाता है। वैसे ही है मेरे प्यारो, जब एक बच्चा पैदा होता है व पैदा होती है, वो बच्चा जो है उत्तम से उत्तम काम को करेगा, उत्तम भाग है, ऐसा जो है उस अर्थ को परिप्रकाश करता है। Now that is the meaning of Ramesses. और उसका रामसेस का अर्थ वही है मेरे प्यारो। All right. So we've studied the first station, which is called Ramesses. और हम लोगों ने रामसेस जो पहली रुकने व ठहरा हुआ जगह के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया है। All right. Okay. Now we will move on to the next location, which is Sukkot. और Sukkot. आइए हम लोग जो है दूसरी जगह के ओर जाते हैं। उस जगह का नाम है सुकोत। Now I took some time to recap yesterday because why did we spend so much of time in studying Ramesses? What implication does it have to us? Has to be related, only then we'll be able to return it. That's the reason I took so much of time to dwell on the first station called Ramses. और मेरे प्यारो, रामसेस में जो है बहुत समय हम लोगों ने गुजारा था, बिताया था, इसीलिए कि ये बात यदि आपको और मुझे समझ में आ जाता है, तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए थोड़ा ज्यादा समय हम रामसेस के विषय में अध्ययन किया। Now the second station that we are moving on to is called Sukkot. और दूसरी जो ठहरी हुई जगह है, वो रुकी हुई जगह जो है हम पढ़ने वाले हैं, वो है सुकोत। Now we must understand that the Red Sea separates the life in Egypt and the desert life or the wilderness journey. और मेरे प्यारो, जो लाल समुंदर है, वो मिस्र देश को और जो जो मरुभूमि में रहते हैं, मरुभूमि में यात्रा करने का, इन दोनों जो जगह है उसको विभाजित करता है। Now, as I said yesterday, the Nile River, the Nile Delta, is a very fertile, cultivated place in Egypt. और मिस्र देश में, मैंने जैसे कि पहले कहा था, मिस्र देश में नील नदी का जो तटीय इलाका है, बहुत ही उर्वर जमीन है, बहुत ही जो है उपज देने वाली जमीन है। All right, and when they cross the Red Sea, on the other side is the wilderness journey or the barren land or the uncultivated place. और जैसे ही वे लोग जो है उस लाल समुद्र को पार कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो जगह अच्छा नहीं होता है, बहुत ही खराब होता है। All right, yesterday we covered Ramesses, which is the first station out of the 42 stations. Yes, uncle, once again repeat please. Yesterday we covered Ramesses, which is the first station out of all the 42 stations. और मेरे प्यारो, पिछले दिन जो है हम लोगों ने रामसेस के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया था, और जो है बाकी 42 ऐसी जगहें हमें अध्ययन करने की जरूरत है। Today we're going to consider Sukkot and also Etham. और आज हम लोग दो जगहों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है सुकोत और दूसरा हम लोग अध्ययन करने वाले हैं एथाम। Now, there are 4 locations before they cross the Red Sea. और लाल समुद्र पार करने से पहले उनको 4 ऐसी जगहें हैं, उनको वो जगहों से वे लोग गुजरे हैं। All these locations are in Egypt. और ये जो 4 ऐसी जगहें हैं, वो जगहें मिस्र देश में ही हैं। Right, if you see the screen, you'll have Ramesses, you have Sukkot, you have Etham and Pihahiroth. Now these 4 locations come before crossing the Red Sea. और आप लोग देख सकते हैं कि रामसेस, सुकोत, एथाम और हाहिरोत जो जगह है, वो सब के सब मिस्र देश में आते हैं। All right, so we have covered Ramesses. Today we will focus on Sukkot. और हम लोगों ने पिछले दिन जो है रामसेस के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया है, आज हम लोग सुकोत के बारे में पढ़ेंगे। At the last few weeks, I've been trying to get the right map that I can use, like what I used in the Apostle Paul's missionary journey. I had a beautiful map. I was able to plot everything. The last few weeks, I've been searching. Only yesterday, I found this map on the net, which I think is closer to what I have in mind to share with all of you.
और मेरे प्यारो पिछले अध्याय में पिछले समय में जो प्रेरित प्रेरित पौलुस की जो सुसमाचार यात्रा है उस उसके बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय बहुत अच्छा एक नक्शा मुझे मिला था, उसको जो है हम लोगों ने अध्ययन किया। वैसे ही मैं काफ़ी जो है इसके जो नक्शा है जो इज़राइल की मरु यात्रा के विषय में मैं ढूँढ रहा था, लेकिन कल ही मुझे ऐसी एक नक्शा मिली है, उस नक्शा के ज़रिए मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। It's got most of the locations that we're going to discuss. और ये ऐसी जो नक्शा मिला है, इस नक्शे में बहुत सारे जो जगहें हैं, जो जगह को कि हम जो है आगे वाले हमारे अध्ययन में अध्ययन करने वाले हैं। All right, you can see the arrow that I'm going to show you now. That is और आप Ramses. लोग जो है या यहाँ पर जो तीर के निशान को आप देख सकते हैं, जहाँ पर जिसके विषय में हम पढ़ने वाले हैं। Right, the first place is Ramesses, which we considered yesterday. और पहली जो जगह है रामसेस जो जिसके विषय में हम लोगों ने पिछले दिन अध्ययन किया है। And today we're moving to the second location, which is Sukkot. और आज हम जो है दूसरी जगह के ओर जा रहे हैं, वो दूसरी जगह है सुकोत। And then we can plot all the locations that we are studying in this map. और आने वाला समय में हम जो है जो नक्शे पढ़ रहे हैं उसको धीरे-धीरे एक-एक जगह करके देखते जाएंगे। All right. Now, if you let me show this to you. You see, you got Sukkot here, you got Etham, and then you got Pihahiroth. Now, these were the 4 locations before they cross the Red Sea and come this side to the wilderness journey. और मेरे प्यारो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो 4 जगह हैं रामसेस के बाद सुकोत, सुकोत के बाद एथाम, एथाम के बाद जो है पी-हाहिरोत जो है, इन 4 जगहों को आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है वे लोग लाल समुद्र पार करके उस पार आ जाते हैं। After Pihahiroth here, this is where they cross the Red Sea and come to that. We will study when we come to that location. और हम लोग देखेंगे कि पी-हाहिरोत के बाद जो है अलग-अलग जगहों में जो लाल समुद्र पार करके आते हैं, फिर बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे। The meaning of Sukkot is shelter. और सुकोत का अर्थ होता है शरण स्थान। All right. Now, when we talk about shelter, it means these are the clouds of glory that sheltered and protected the people as they journeyed in the wilderness. और मेरे प्यारो सुकोत का अर्थ जैसे कि हम देखते हैं कि शरण स्थान है, परमेश्वर ने उस जो है मेघ है बादल उस महिमा के साथ इन लोगों को शरण दे करके आगे बढ़ाया था। We know that the children of Israel were protected by the pillar of cloud during the day, by the pillar of fire through the night. और हम जानते हैं कि इज़राइल के लोग जो है उस बादल की छाया दिन में जो है उनको संरक्षण दिया और रात को अग्नि का ज्वाला होकर के उनको अगवाही किया। And similarly, when the children of Israel had left Egypt and they came to almost closer to Red Sea, you will find that the pillar of cloud and the pillar of fire was guarding them, protecting them, and preserving them. मेरे प्यारो जैसे कि हम लोग लाल समुद्र के पास में भी आते हैं उस वक्त जो है बादल की छाया और अग्नि का ज्वाला उनको रक्षा करते हुए और उनको अगवाही करते ले जा रहे थे, इस बात को हम पढ़ सकते हैं। So Sukkot means it's a shelter, which means God was providing a shelter and protecting his people in the wilderness journey. और मेरे प्यारो सुखद का अर्थ होता है शरण स्थान, उसका मतलब है परमेश्वर उनको शरण दे करके और हर एक आवश्यकताओं को पूरा करके उस मरु यात्रा में मदद करते हुए ले जा रहा है। So brothers and sisters, what does it mean to us? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में ये क्या दर्शाता है? Listen to me carefully. This is like the shelter that our parents provide in our home in our early age. मेरे प्यारो यही एक शरण स्थान है जो अपना माता पिता हमारे बचपन में वे लोग देते हैं, शरण देते हैं। How important is a shelter to a child when it is born until it grows to a certain age? The shelter which the parents provide for the children is so important. मेरे प्यारो कितना महत्वपूर्ण बात है जब माँ बाप माता पिता अपने बच्चों को बचपन में जो है शरण दे करके आगे बढ़ाते हैं।
for certain reasons, some parents are not able to provide that kind of a shelter to their children. और कुछ कारण के वजह से कुछ ऐसे माता-पिता हैं अपने बच्चों को ऐसे शरण नहीं दे पाते हैं। But providing that kind of a shelter to a children at that very initial stage, at that infant stage, at that formative stage is so important. और मेरे प्यारों जो है माता-पिता को उस बचपन में जो जब बच्चे रहते हैं उस वक़्त जो है ऐसा शरण देना, ऐसे जो है अगुवाई करके बढ़ाना कितनी महत्वपूर्ण और ज़रूरत चीज़ है। As we see in Ramesses, as I told you, Ramesses is like being born into the world. और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा कि रामासेस जो है ये दर्शाता है कि एक बच्चा अपना माँ के गर्भ से निकल करके आने का We बात है। enter into the shelter, the nurture of a house, the security of a house in Sukkot, in a place like Sukkot. और मेरे प्यारों हम क्या करते हैं जैसे कि पैदा हो करके सुखद में हम लोग आते हैं जहां पर हमारी परवरिश होती है, एक घर में हम लोग घुसते हैं जहां पर परवरिश होता है। What happens in a house? It's very comfortable. A house cultivates the child. A house builds the confidence of the child. A house is protective of the child. That exactly is the Sukkot experience. मेरे प्यारों एक घर में एक बच्चा जब रहता है उसको क्या दर्शाता है, वो हर तरह से संरक्षित है, सुरक्षित है और वो क्या करता है हर जरूरत चीज जो है वहां पर उसको मिलती है और हम लोग देखते हैं कि सुरक्षा उसको मिलती है, संरक्षण मिलती है और हम वही चीज ही सुकत हमें दर्शाता है। This shelter or this home helps develop the child to respect itself, to respect people around. Brings in a lot of esteem, confidence to take life's challenges. और मेरे प्यारों सुखोत हमें ये भी दर्शाता है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सारे समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो सब कुछ का सामना करने की शिक्षा देता है। Home is a beautiful place to educate, to train, and to bring up the children in the right way that they should face life. And particularly in godly homes, the grace of God, the Spirit of God shapes it even better. So when our children come out into this world, they come out as the best children in the world. सो मेरे प्यारों इसीलिए घर एक ऐसी जगह है जहां पर उसको प्रशिक्षण मिलती है, जहां पर उसको जो है एजुकेशन मिलती है और एक जो है प्रभु भय मानने वाला परिवार के लिए भी बहुत महत्व रखता है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उस व्यक्ति को अगुवाई करके एक जो है अच्छा विश्वासी बना करके लोगों के सामने प्रकट करता है। Sukkot is the second station that the children of Israel have stepped into. और मेरे प्यारों सुकत एक ऐसी दूसरी जगह है जहां पर इज़राइल के लोग अपना जो है कदम को रखा था। And the meaning is so appropriate, meaning shelter, which means the Lord is going to provide them shelter through their entire journey until they reach the destination that He has chosen for them. और जगह को भी जो है अर्थ सही मायने में प्रकाश करता है क्योंकि उस जगह के पास वे लोग जाने के बाद उस जगह में जाने के बाद परमेश्वर आने वाला समय तक जो है उनके अंतिम यात्रा तक परमेश्वर उनको शरण देने वाला है और उनके हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। Today, the place called Sukkot is known as Tel El Maskutha in Egypt. और मेरे प्यारों अभी जो वर्तमान में मिस्र देश में जो सुकोत जो जगह है अभी उसको तेल एल मास्कुता के रूप में जाना जाता है। It's an Arabic name. और ये जो नाम है जो अरब लोगों के नाम के अनुसार है। This Arabic name is given to the place called Sukkot. और यही अरबी भाषा की नाम जो है सुकोत को दिया गया है। Now in Egyptian language, this place is also called Jeku, which is T-J-E-K-U. Jeku is the Egyptian name given to this place called Sukkot. और मेरे प्यारों इस सुकोत को जो है मिस्र देश के नाम के अनुसार जकूब नाम दिया गया है। All right, this place is known for camping by traders, merchants, and those people who are going from one place to the other. They camp there for some time. You have these what do you call that? The state houses or rest houses when the government people are traveling, the travelers bungalow and all that they used to call earlier. Similarly, this Sukkot or Jeku or Tel El Maskuda is a place for merchants traveling, for people who are traveling from one place to the other, a place of rest.
और मेरे प्यारों, वर्तमान में ये जो जगह है, जो है विश्राम गृह के रूप में जाना जाता है। लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते वक़्त जो है, इस जगह में वे लोग ठहरते हैं, रुकते हैं, विश्राम लेते हैं और फिर बाद में यात्रा को अब यात्रा की ओर वे लोग आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में वो जगह ठहरा हुआ जगह व ठहरने की जगह व विश्राम लेने की जगह के रूप में जाना जाता है। I remember when I was young in my school and college days, there's something which is known as the traveler's bungalow. Traveler's bungalow is meant for the government officials when they keep traveling from one place to the other. They need rest. So they go to that place, they find another home, like their own home, they stay there. That's called the traveler's bungalow. So this Sukkot was a place like that. और मेरे प्यारों, जो सरकारी जो काम-काज करने वाले जो ऑफ़िसर्स होते हैं, वे लोग विश्राम गृह में ठहरते हैं। अभी भी हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे जगहें हैं, जहाँ पर विश्राम घर है और वहाँ पर जो है ये सरकार काम-काज करने वाले लोग रुकते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अपना घर जैसा महसूस होता है। Or they have something like the state guest houses. Now, for example, if officials come from different states to Delhi, each state has got a house there in Delhi. They got a guest house. They got a place there where their own tradition, their own food, their own people are there to take care of them. Something like that is what Sukkot was. और मेरे प्यारों, जैसे कि गेस्ट हाउस आजकल बना हुआ है व जो है ठहरने की जगह व घर बना हुआ है, वहाँ पर यदि जाएँगे तो वे लोग अपना भोजन खा सकते हैं, अपने लोग उनको देखभाल करने के लिए होते हैं, ऐसी जगह को हम देख सकते हैं। This Sukkot was not a permanent city. It was not a place of permanent stay for anyone. और ये जो सुक्कोत है, जो कोई भी व्यक्ति के लिए जो है ठहरने की जगह नहीं थी, संपूर्ण रीति से सदैव के लिए रुकने की जगह नहीं थी। It was like a campsite. It was like a camp place, and it was made out of temporary shelters. और मेरे प्यारों, ये जो जगह थी, जैसे कि जो है कैंप बनाते हैं लोग बाग कुछ ही दिन के लिए रुकने के लिए जो है कैंप बनाते हैं, उस चीज़ को वो दर्शाता है। Now, how this was made is the shelter was made of animal skin, and then it had branches of the trees which are in the Nile Delta. Using that, they made this kind of a temporary shelter. और मेरे प्यारों, ये जो रुकने की व ठहरने की जो कुटिया बनती थी, वो कैसे बनता था? वो कुटिया जो है, जो पशु की जो चमड़े होते हैं, उससे वो बनाया करते थे और उसके साथ-साथ जैसे कि नील नदी की जो तटीय इलाका में जो छोटे-छोटे झाड़ियाँ होती है, उन झाड़ियों से ये झोपड़ी वगैरह बनाया करते थे। You see on the picture, these are some pictures that is available on the net to show how these shelters were made during that time. और मेरे प्यारों, आप देख सकते हैं कुछ ऐसी जो जगहें हैं इंटरनेट में आप पा सकते हैं, कैसे वो झोपड़ी वगैरह भी ये लोग बनाया करते हैं। Now, this place, Sukkot, was on the border, that is, before they could move on to the next location or closer to the Egyptian border. So, this place, Sukkot, was closer to that. और मेरे प्यारों, सुकत एक ऐसी जगह थी जैसे कि मिस्र देश के किनारे पर था, बॉर्डर पर था और उसी जगह में रुक करके वो मिस्र देश में प्रवेश करते The थे। distance between Ramesses and Sukkot was about 15 miles or 24 kilometers. और मेरे प्यारों, हम यदि देखेंगे तो सुकोत और जो है रामासिस के बीच में जो अंतराल होती है व दूरी होती है, वो कम से कम 15 मील की दूरी व 24 किलोमीटर करीबन हो सकते हैं। All right. So, as I said, Sukkot means shelters, huts or booths that were created to protect people in their journey from the difficult conditions that they face in their journey. और मेरे प्यारों, सुखोत हमें ये दर्शाता है कि लोग जो है अपना कठिनाइयों का परिस्थिति का सामना करके जो यात्रा करते हैं, वो एक ऐसी जगह है उन लोगों को जो है वहां पर प्रोटेक्ट करती है व उनको रक्षा करती है, विश्राम देती है। Another reference to Sukkot means the Feast of Tabernacles or the Feast of Booths, as it is called. और मेरे प्यारों, सुकोत का मतलब एक और जो अर्थ को दर्शाता है, जो तंबुओं में रह करके जो पर्व मनाते हैं, उस चीज को दर्शाता है, उस पर्व को दर्शाता है।
And this Feast of Tabernacles or the Feast of the Booths, this is a very important Jewish festival. और ये जो तंबू में रह करके जो पर्व मनाने का यहूदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पर्व है। It was an autumn festival of thanksgiving to the Lord. और ये पतझड़ के मौसम के समय में एक ऐसे त्योहार मनाया जाता है और वो समय जो है परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं। According to the Hebrew calendar, this starts on the 15th of September or October and continues for 5 to 7 days. और यदि यहूदी का जो कैलेंडर को यदि हम लोग देखेंगे तो ये शुरू होता है करीबन 15 सितंबर का महीना में और करीबन 6 से 7 दिन तक ये त्योहार मनाया And जाता this है। festival starts 5 days after the Day of Atonement. The Day of Atonement comes in Leviticus 16. Now, after the Day of Atonement, 5 days after this festival is celebrated by the Jews or the Hebrews. और जो है जो प्रायश्चित का जो त्योहार होती है उस त्योहार के बाद करीबन 5 दिन के बाद जो है ये त्योहार मनाया जाता है, ये पर्व मनाई जाती है। This festival is a 7-day long festival. और ये जो त्योहार है व पर्व है 7 दिन का जो लंबी समय तक वे लोग इस त्योहार को मनाते हैं। There are a number of activities which they do each day. और हर दिन में अलग-अलग प्रकार के वे लोग काम में व्यस्त होते हैं। There are a lot of sacrificial offerings that are made every day. और हर रोज जो है अलग-अलग तरीका का बलिदान वे लोग चढ़ाते हैं। And people do the cleaning of the altars by water, cleaning of the temple. All that is done during this time. और इसी समय में जो है जो वेदी है और जो मंदिर है उसको पानी के साथ वे लोग साफ सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं। And during this time, during these 7 days, there is recitation. That is, they come to the temple, the synagogue, and verses are recited. और मेरे प्यारो ये जो समय होता है ये 7 दिन का वक्त है। उस वक्त जो है वे लोग मंदिर में आकर के परमेश्वर का वचन से बहुत सारे ऐसी पदें हैं उन पदों को वे लोग याद करते हैं, When you स्मरण have करते time, हैं। yes, when you have time, you read Psalm 113 to Psalm 118, those 5, 6 chapters of Psalm. You will understand these are the recitation that is done in the temple during this festival of the tabernacles or the festival of the booths. और यदि जब आपके पास समय है तो भजन संहिता 113 से 118 अध्याय को आप अध्ययन कर लेना, जहां पर हम समझते हैं कि इस जो है तंबुओं में रह करके जो पर्व वे लोग मनाते हैं उस वक्त वे लोग ऐसे पदों को वे लोग स्मरण करते हैं, याद करते हैं। During the 7 days, not only that, during the night they go to the wells and they draw water. और ये जो है दिन के वक्त में नहीं बल्कि रात के वक्त में वे लोग जा करके कुआओं से जहां पर जो कुआं होती है वहां से वे लोग पानी निकालते हैं। Now, during these 7 days, there's something which is known as the torch dancing. Using a torch, they dance. मेरे प्यारो ये 7 दिन के वक्त में वे लोग जो है मशाल को लेकर के वे लोग जो है नाच गाना करते हैं। They also play the flute. The playing of the flute is also very significant during this period. और इसी समय में वे लोग जो है बांसुरी भी बजाते हैं और ये उन लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। Now, the history says that they use various instruments and they all sing together. This is the festival of celebration, the festival of giving thanks to the Lord. So they use all kinds of instruments to praise the Lord. और मेरे प्यारो जो वाद्य यंत्र होता है उन हर एक तरह का वाद्य यंत्र को वे लोग इस्तेमाल करते हैं और सब के सब मिल करके गाना गाते हैं और ये एक समय होता है बहुत खुशी और जो है त्योहार पर्व मनाने का उन लोगों के लिए एक समय होती है। Now, during this festival of Sukkot, the Jews necessarily have to stay in the palm booths. और ये जो त्योहार होती है उस त्योहार के वक्त में ये सुकत का जो त्योहार होता है उस समय हरेक यहूदी को क्या है ना जो ताल का वृक्ष है उस पेड़ की जो कुटिया है उसको बना करके उसके अंदर रहने की And परंपरा they है। have to take their food in the booths. In the night, they can go home and stay, but during the day, they have to take their food in the booths. That's how they celebrate the Sukkot festival.
और मेरे प्यारो रात के वक्त में वे लोग अपने घर जा सकते हैं, लेकिन दिन के वक्त में ये से जो है कुटिया वे लोग जो बनाए हैं वहां पर ही उनको रुक करके खाना पीना खाना होता है। Now, this festival, when it translates into the New Testament period, this is called the Palm Sunday. You know, when the Lord Jesus Christ was entering Jerusalem, he was welcomed with palms, and that exactly is what is translated in the Old Testament times when they celebrated the Sukkot festival. और मेरे प्यारो जैसे कि पुराना नियम में हम लोग देखते हैं कि यही जो सुकोत का जो पर्व वे लोग मनाया करते थे, आज वर्तमान में लोग उसको क्या कर रहे हैं ना, पाम संडे बा जो है इतवार का एक पर्व वे लोग जो है बनाते हैं, ताल पत्ता वगैरह या खजूर का जो पेड़ होती है, पत्तियां होती है, उसको लेकर के एक त्योहार वर्तमान में लोग जो है मनाते हैं। The people there used to bring branches of the trees, the fruits. These are all symbols of rejoicing in the Bible. This is what they used at that time. और मेरे प्यारे लोग क्या करते थे उस वक्त जो है अपने घर से फल या फिर बहुत सारे तरह तरह का चीज लेकर के आते थे। उसका यही दर्शाता है कि वे लोग जो है बहुत खुशी से इस त्योहार को मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, इस चीज को दर्शाता है। Let's read Exodus chapter 23 and verse 16. Exodus 23 and 16. आइए हम लोग निर्गमन का पुस्तक उसका 16वां अध्याय और 23 एंड 16 राइट Yeah, अंकल? 23, 16. Exodus. 23वां अध्याय और 16 पद को हम लोग पढ़ते हैं। निर्गमन उसका 23वां अध्याय 16 पद। 16 पद। यस। और जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना, और वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम करके फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मनाना। All right. So the Sukkot festival, in other words, can also be termed as the feast of the harvesting, where the grains and fruits that were gathered at the end of the harvest, they offer that and they celebrate that. और मेरे प्यारो ये जो त्योहार है, सुकोत का जो त्योहार है, ये त्योहार क्या होता है ना, वे लोग जब अपनी कटनी का समय होता है उस वक्त इस त्योहार को वे लोग मनाते थे, या फिर जब बटोरने का समय भी होता है, अपना अनाज बटोरने का समय होता है, उस वक्त इस त्योहार को वे लोग मनाया करते थे। Now let's also read Leviticus chapter 23 and verse 34. आइए लेवीय व्यवस्था का पुस्तक की ओर जाते हैं 23, और 23वां 23, अध्याय 34. 23वां अध्याय 34वां पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। 23वां अध्याय 34वां पद। 23वां अध्याय 24 पद। 34वां पद। 34. हाँ, इस्राएलियों से कहे कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। Okay, the feast of the booths, you know, you have the reference here, shelters, the feast of the booths or shelters. Why they do that is to recall the time when the Israelites were living in huts or sukkot during their wilderness journey. This is to remind them of that time when the children of Israel were traveling. और मेरे प्यारों हम लोग देखते हैं कि वे लोग जो है पर्व को वे लोग मनाते थे और जो है झोपड़ियों का पर्व में मना रहे थे। वो सब कुछ क्या दर्शाता है ना, उनको याद, वो इज़राइल की यात्रा के समय उनकी याद दिलाता है। All right. Now in Exodus chapter 12 and verse 40, let's read Exodus 12 and verse 40. आइए एक और पद को हम लोग पढ़ते हैं, निर्गमन का पुस्तक उसका 12 अध्याय और 40वां पद। 12 अध्याय 40। 40. Exodus 12 and 40. मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 वर्ष बीत गए। Right? So 430 years the children of Israel lived in Egypt. और जो है इज़राइल के लोग मिस्र में 430 साल तक वहां पर बिताए थे। The great Jewish historian Josephus, he says that after Abraham had traveled to Canaan for 430 years, the children of Israel lived in Egypt.
और यहूदियों का एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक विद जो यूसुफस है, वो भी इस बात को जो है अपने पुस्तक में वो लिखते हैं। वो ये है कि अब्राहम के बाद इज़राइल के लोग 430 साल तक मिस्र में अपना समय को बिताया था। All right, now in Exodus chapter 13, we don't have to read it, but in Exodus chapter 13, from verses 1 to 16, you find that the firstborn of every Israelite family was consecrated as a commemoration of the Exodus from Egypt. That is to remind themselves of their Exodus from Egypt. This was something that was done. And we find it in Exodus 13, 1 to 16. और हम लोग जो है हम लोग देखते हैं कि निर्गमन का पुस्तक उसका 13वां अध्याय पहला पद से लेकर के 16 पद तक हम लोग यदि पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग समझते हैं कि इज़राइल के जो पहलोठा हैं, Yes. वो परमेश्वर के लिए अर्पण करना है और उसको पवित्र मानने के लिए कहा गया था। Yeah, they were pavitra, they were consecrated, and this was to remind them of, we all know how they left Egypt and came. What was the last incident that made them leave Egypt and come? To commemorate that, to remember that they were doing this. और मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि उनको जो है पवित्र मानने का क्यों कारण थी, क्योंकि वे लोग कैसे परिस्थिति में थे और इज़राइल में इज़राइल के लोग मिस्र देश को कैसे छोड़े थे, उसको याद करने के लिए जो है इज़राइल की जो पहलोठों को पवित्र मानने का व उनको ठहराने की जो काम उन्होंने किया था। All right, now from Exodus, let's read two verses. Exodus 13, two verses, let's read now, verses 17 and 18. आइए हम लोग दो पदों को पढ़ लेते हैं, 17वां और 18वां पद को। निर्गमन का पुस्तक उसका 13वां अध्याय 17वां और 18वां पद हम लोग पढ़ लेते हैं। जब फ़िरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर कि उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट जाएं। इसलिए परमेश्वर ने उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इस्राएली भांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। You see there, chakkar khilakar, that's what I heard read, which means the Lord was leading the Israelites. He did not take them in the direct road that goes up to the place that he wanted to take them to. और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है परमेश्वर चक्कर खिला करके उनको लेकर के गया। परमेश्वर जो है सीधी मार्ग थी, उस सीधी मार्ग में नहीं लेकर के इसीलिए गया था कि the reason why he did that is that the children of Israel should not at any point of time regret and repent and think of getting back to Egypt. और वे लोग जो है पश्चाताप करके कहीं वे लोग भटक करके फिर से मिस्र देश में ना लौट जाए। You see, the way in which the Lord was leading them, sometimes it's mysterious for us to understand. Why is the Lord allowing us a circuitous route? I could have easily got that. He could have easily given that to me, but he's taking me through a long journey. He's taking me to a long way to help me reach that beloved. The Lord has a purpose in doing that, like how he was leading the children of Israel here. और मेरे प्यारों, आप देखिए जो है वे लोगों को जो है सीधा मार्ग ले करके उसी जगह में पहुंचा सकता था, लेकिन जो है लंबी यात्रा करवा करके उस जगह में पहुंचा रहा है। आपको और मेरे मन में भी यही सोच आता है कि अरे मैं तो मतलब सीधी तरीके से बहुत आसान तरीके से उस चीज को मैं प्राप्त कर सकता था, लेकिन प्रभु मुझे क्यों इतना लंबा सफर करवा करके उस काम को हासिल करवा रहा है। मेरे प्यारों, उसके लिए परमेश्वर की एक योजना है। Now, if also read, I think we are nearing the time of ending. In Exodus 14, let's read the first 4 verses. There's another interesting thing that we find there. Exodus 14, the first 4 verses. आइए हम लोग निर्गमन का पुस्तक उसका 14वां अध्याय पहला पद से चौथा पद तक पढ़ ले। वहां पर कुछ ऐसी अनोखी बातों को हम लोग पढ़ सकते हैं। Exodus 14, the first 4 यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगदोल
और समुद्र के बीच पीहीरोत के सम्मुख बालस्पोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फ़िरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश के उलझनों में भजे हैं और जंगल में गिर गए हैं। तब फ़िरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फ़िरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्र जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, और उन्होंने वैसा ही किया। I'm sure all of us have read this verses earlier, many times earlier. मेरे प्यारो, हम सब जानते हैं कि इन पदों को पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। But this time when we read it, when we are considering the expedition of Israel, it is important for us to understand how God deals with his people and not the way we think he should lead us. He leads us according to his way. मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि जो है इन पदों के जरिए समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपनी योजना, अपनी इच्छा के अनुसार हमें अगवाही नहीं करता, लेकिन परमेश्वर जो है खुद के अपने इच्छा के अनुसार जो है वो हमें अगवाही करता है और उसके जरिए वो महिमा In पाता है। the first verse we read, order the Israelites to turn back and camp by Pihahiroth, turn back and camp, which means they return back, they retraced their steps back and went and camped there. और मेरे प्यारो, आप देखिए कि पीहाहिरोत के जो है वे लोग आगे बढ़े हुए थे, लेकिन फिर बाद में लौट करके आकर के पीहाहिरोत में अपना डेरा को उन्होंने डाला। Sometimes in our life it will appear as if that we are not advancing, but we are going back. It may appear to be so, but God's got a purpose from that. Yes, मेरे प्यारो, हम दिखते हैं, हमको ऐसा लगता है कि अरे हमको तो आगे जाने की आवश्यकता थी, हमें आगे जाना चाहिए था, लेकिन हम पीछे मोड़ करके आ रहे। मेरे प्यारो, उसके लिए कुछ ना कुछ परमेश्वर की जरूर योजना होगी। Because you see in verse 3, the Lord is saying the Pharaoh will think that the Israelites are confused, they are trapped in the wilderness, and then he will start chasing them. And then you read in verse 5, after this, the Egyptians will know that I am the Lord, which means for those people who are chasing God's children, to show that he is their God, the Lord does such things, which we don't understand. मेरे प्यारो, आप सोच करके देखो कि इज़राइल के लोगों को पीछे ले आकर के जो है एक जगह में रुकवाता है। फिरौन सोचेगा कि अरे ये लोग जंगल में भटक गए हैं और इसीलिए वे लोग वापस आ रहे हैं। ऐसा सोच करके फिरौन जो है क्या करेगा ना, उनकी पीछा करेगा। तब जो है मैं उन लोगों को नाश करूंगा और मिस्र देश के सब लोग जानेंगे कि मैं ही यहोवा हूँ। मेरे प्यारो, आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। परमेश्वर के लोगों को बहुत सारे लोग सताते हैं, परेशान करते हैं, और जो है उसके जरिए परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा। तब वे लोग जानेंगे कि यहोवा परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। Let me say this and close and listen to me carefully. We will be progressing well. We'll be advancing very well. All of a sudden, certain things happen. It appears as if, oh, I'm going back. I'm going behind. The Lord is not allowing me to progress. Now, the Lord's got a purpose when it happens, because Pharaoh would have thought, okay, these people are going, they're progressing very well. When he saw them coming back, returning back, he said, oh, these people are confused. They don't know what they're doing. Their God is not helping them. But ultimately, the Lord had a purpose to glorify his name through the children of Israel in the eyes of the enemy. That is what will happen in our lives also sometimes, brothers and sisters. मेरे प्यारो, आप देख करके देखिए, आप बहुत आगे तक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा परिस्थितियां आती है, आप पीछे आपको आना पड़ेगा। लोग आपके बारे में यही सोचेंगे कि मैं भी, और खुद आप लोग सोचोगे कि मैं बढ़ते जा रहा था और पीछे हो रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारो, आप देखिए इज़राइल के जीवन के जरिए आप इस बात को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। वे लोग आगे जा रहे थे और पीछे मोड़ करके आए, उसके लिए कुछ ना कुछ परमेश्वर की योजना है मेरे प्यारो। God does not work according to how we think. परमेश्वर जो है अपने सोच और विचार के अनुसार काम नहीं करता है। He works according to his plan, because his plan is always the best for us.
और मेरे प्यारो परमेश्वर जो है खुद के वो अपने स्वयं इच्छा के अनुसार अपनी योजना के अनुसार वो काम करते हैं। I close with these words. May the Lord bless these words to our hearts even today. And as we continue to study from the life of the children of Israel, the expedition of Israel, may the Lord reveal more truths to us so that we are encouraged as we journey in this world. मेरे प्यारो इन वचनों के जरिए मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में इस यात्रा के जरिए जो है आपके और मेरे जीवन में बसे और कार्य करे। Thank you very much, Sibir, for the wonderful translation. I thank you all for the opportunity. All thanks be to God. और